News just coming in. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra has landed in another controversy. Union Minister Smriti Irani has taken a veiled egg at the Gandhi sign as he performed Ma Narmada Aarti at Omkareshwar in Madhya Pradesh. The BJP leader accused him of wrongly wearing the Om shawl, posted an upright picture of Rahul and captioned, "Now it is fine." Smriti Irani has put out a picture of Rahul Gandhi saying now it has been fixed. Rahul Gandhi was wearing an Om scarf in which it appeared that he had taken the scarf over him or taken the stole over him in such a fashion as Om appeared to be upside down. And that's the reason why the BJP is taking a dig at Rahul Gandhi. The Congress too, interestingly, has gone all guns blazing against Smriti Irani and those from the BJP who are pointing this out. Supriya Bhardwaj is getting us more on that story from Khargone in Madhya Pradesh. Supriya, in fact, this is a controversy that has broken out after it appeared that Rahul Gandhi was perhaps wearing that shawl upside down. The BJP leaders, including Union Minister, have raked this up. Well, at the moment, Sneha, we are heading from Omkareshwar towards the city of Mahakaleshwar, Ujjain. And last evening at Omkareshwar, Rahul Gandhi, along with his family members, Sister Priyanka Gandhi, Mr. Vadra, as well as nephew Rehan Vadra, performed that puja. And technically, the Congress party is maintaining that it was the pujaris or the pandits who were actually presenting him with all, doing his tilak as well as puja, and even presented the shawl and had put it that way. I've been joined by the spokesperson of the Congress party from Madhya Pradesh, Mr. Anand. सर, जो कंट्रोवर्सी ब्रेक हुई है उस पर आपको क्या कहना है? जो स्मृति ईरानी जी ने ट्वीट किया उसको और बाकी और जो बीजेपी वाले कह रहे राहुल गांधी जी ने ओम का जो शॉल था वो उल्टा दिख रहा है फोटो के अंदर. गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रावण रथी विरत रघुवीरा. रावण रथी विरत रघुवीरा का अर्थ है कि रावण जो है वो रथ पर सवार होकर आते हैं और रघुवीर पैदल चलते हैं. तो भारत देश में अभी आजादी के बाद बहुत सारे यात्राएं हुई. उसी पर आ रहा हूं. तो हमारे नेता, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब पैदल यात्रा कर रहे हैं और पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं तो वो महात्मा गांधी के मार्ग पर हैं, आचार्य शंकर के मार्ग पर हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मार्ग पर हैं, जिन्होंने इस देश में पदयात्राएं की हैं. तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि इस यात्रा का प्रभाव बहुत व्यापक हो रहा है, इसलिए वो अपने असली चरित्र में आ रहे हैं कि वो केवल ट्रोल हैं. उनके पास ना कोई राजनीतिक समझ है, ना कोई विजन है, ना कोई देश के लोगों के बारे में कोई एक हितकारी विचार है. और जो कंट्रोवर्सी इन्होंने पैदा करने की कोशिश की है वो वास्तव में कंट्रोवर्सी नहीं है, वो एक खीज है, वो एक जलन है जो राहुल गांधी जी को प्यार मिल रहा है. उसका ट्वीट किया, उस पर आपको क्या कहना है? जी, फोटो बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल है. और मैं स्मृति ईरानी जी को कहना चाहूंगा कि मैडम नफरत छोड़िए, भारत जोड़िए. मैं खुद आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भारत जोड़ो यात्रा में भारत के लोगों के साथ चलिए, देश के लोगों के साथ चलिए. इन नफरती ट्वीट से कुछ नहीं होगा. फालतू की कंट्रोवर्सी जो है वो किसी काम नहीं आएगी आपके. और आज राहुल गांधी जी डिस्कोर्स में हैं, वो राजनीति का चरित्र बदल रहे हैं, राजनीति की भाषा बदल रहे हैं. Well, I would like to add on, Srinivas, who is the Youth Congress President, Sneha, has also tweeted just now. He has tweeted Smriti Irani's photograph, the Union Minister Mrs. Smriti Irani's photograph, and in that photograph also he has done an upside turn. On one side he has put Ms. Irani's photograph of protesting along with a cylinder when the prices were around 400, and second time he is in the reverse photograph. It is the cylinder is 1100 rupees, but the Union Minister is silent. So the war of words, the war of words has also started between the Congress party as far as the Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra is concerned. It's nothing new. Ever since the yatra started, we have been seeing such scenes. I would like to show you over here what is happening, and we'll try to get in a word from other people also, because the yatra is going on here. You can see behind me. I would like to show you over here. I've been joined by Mr. Arun Yadav ji. Let's get in a quick word from him also. Sir, what do you have to say about this controversy which is in connection? Sir, So, सर, जो स्मृति ईरानी जी ने फोटोग्राफ ट्वीट किए हैं
ओम का जो कल राहुल जी को उन्होंने पहनाया था शॉल, उसके ऊपर पूरा का पूरा, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी की इस यात्रा को ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व में ऐसा पहला व्यक्ति राहुल गांधी है जो 3600 किलोमीटर पैदल चलकर इस भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ में है। पहले उन्होंने टी शर्ट से शुरू किया, फिर जूतों की बात करने लगे, फिर आप कल ओंकारेश्वर में जहां मंदिर में पूजा अर्चना करने राहुल जी गए थे, भाई जो कुछ वहां पर प्रक्रिया हुई तो पंडित जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए नई नई चीजें निकालकर वातावरण खराब करने का, दूषित करने का काम कर रही है। ऐतिहासिक समर्थन राहुल गांधी जी को इस यात्रा में मिल रहा है। आप कह रहे कि ये पंडित जी ने ही ऐसे उनको पहनाया था? ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। पंडित जी ने किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया, ये पंडित जी ने किया है। इसमें कौन सी ऐसी गलत बात हो गई है? कुल मिलाकर हमारे गांव में कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देश की है। आपने ये भी कहा कि मैं पीछे भी आपके स्पोक्स पर्सन से बात कर रही हूँ, कह रहे हैं रोज रोज नई नई कंट्रोवर्सीज बीजेपी लेकर आती है, आप लोग उन पे हमला कर रहे हैं, वो आप पे हमला कर रहे हैं। भाई ये पहले टी शर्ट की बात करते हैं, फिर जूते की बात करने लगते हैं, फिर कोई और बात करते हैं, फिर माला की बात करने लगते हैं, फिर गमछे की बात कर रहे हैं। कल जो कुछ वहां पर ओंकारेश्वर में हुआ है, जो वहां के जो स्थानीय पंडित जी हैं, उन्होंने सारी प्रक्रिया की। अच्छा, इसके साथ साथ यात्रा ओंकारेश्वर से आगे जा रही है। आपके एक स्पोक्स पर्सन ने तो बीजेपी के नेताओं को भी बोल दिया है और यात्रा में जुड़ जाएं। नहीं, यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा का मकसद स्पष्ट है कि जिस तरह से कुछ फासिस्टवादी ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती है, राहुल गांधी जी का एक ही लक्ष्य है, इस देश में भाईचारा कायम करना है, संवाद कायम करना है, इस देश को एक करना है। इसलिए इस यात्रा का नाम भी भारत जोड़ो यात्रा है। आखिरी सवाल है, आप लोग इंदौर में कॉन्सर्ट भी करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा भारत जोड़ो यात्रा कॉन्सर्ट, जिसमें सारे म्यूजिकल नाइट वगैरह है। बहुत सारे All right. We are in fact going to continue to keep those developments in check with Supriya Bhardwaj getting us more from Madhya Pradesh. And that is the new controversy that has erupted over the manner in which Rahul Gandhi wore that stole, that scarf.